good afternoon everyone. कैसे हैं आप सभी? मस्त? यस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स। आज हम बात करते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? टुडे we will discuss about dissociation reaction, and the other name of this reaction is decomposition reaction. Understand everyone? Okay student? Yes. All students visual your video. सभी अपना वीडियो विजिबल करें और अपना फोकस करें पढ़ाई पे। समझ रहे हो सभी? You are genius. You are genius of the future. Yes. Date 28 June 2021. Subject Science. Class 10th. 10th की क्लास है ना? यस, 10th क्लास है। क्लास टॉपिक केमिकल रिएक्शन and equation. Yes, types of chemical reaction. Types of chemical reaction. First थी हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, और एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने बोला था कि इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? आज हम बात करते हैं दूसरे नंबर की जो इक्वेशन है उसका नाम है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन। इस डिसोसिएशन रिएक्शन का दूसरा नाम है डीकंपोजिशन। रिएक्शन। यस, कपिल चौधरी सही बैठो बेटा। डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन, decomposition reaction. In this reaction, reactants break down into two or more product. Yes, in this reaction, reactants convert, reactants break down into two or more product. This type of reaction is known as
known as dissociation reaction. ठीक है, and it is inverse of addition reaction. It is reverse of addition reaction. ठीक है, या हम बोल सकते हैं reverse of addition reaction is known as decomposition reaction. Okay, yes, in this reaction examples A and B after reaction dissociate A plus B. That means in this reaction reactants break down into two or more product. Reactants break down into two or more product. This species LHS. This species is known as reactants. And this species is RHS, right hand side product species. So we can say in dissociation reaction reactants convert into two or more product. Okay, yes. Next, in dissociation reaction in heat, light, electricity is essential for dissociation reaction. Dissociation reaction. That means reactant reactants break down into product in the presence of heat, electricity and light. So on the basis of cause, dissociation reaction are of following types. Okay, dear student. Yes. Look the whiteboard side. Dissociation reaction. In dissociation reaction, reactants break down into two or more products. This type of reaction is known as dissociation reaction. In dissociation reaction, reactant break down into two or more products. Heat, light, electricity is essential for dissociation reaction. That means reactants break down into product in the presence of heat, electricity and light. So on the basis of cause, dissociation reaction are of following types. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन के टाइप्स। सभी के समझ में आ रहा है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटेरियल।
Yes, can I rub this? Okay. Our next heading is types of dissociation reaction. अभी मैंने कहा on the cause of basis dissociation reaction are of following types. So first we will discuss about types of dissociation reaction. Yes, our heading is types of dissociation reaction. First is electrical dissociation. इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल्स की। तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक वाटर का दे रखा है और एक NaCl का दे रखा है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन होता क्या है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसमें लिखना है आपको इन इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, इन इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन reactants break down into two or more product in the presence of electricity. मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन में जो रिएक्टेंट्स होता है वो प्रोडक्ट में टूटता है, टू और मोर प्रोडक्ट में। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो रिएक्टेंट्स होता है वो टू और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सभी अपना वीडियो विजिबल करें। यस, एग्जांपल्स। 2H2O in the presence of electricity, 2H2 plus O2. Here H2O is liquid phase in liquid phase and hydrogen in gas phase and oxygen also in gas phase. Next example is breakdown of NaCl. Breakdown of NaCl. NaCl electricity to Na plus Cl. Here Na in aqueous form and chlorine is gas form and NaCl also in aqueous form. These are the examples of electrical dissociation. Understand, Simran Kumar? Yes. Video quality is low. Harshvardhan and Pankaj Yadav ने क्या टाइप किया है? DCD GVD। इसका मीन क्या होता है? What is the mean of DCD GVD? Akshita Ismail. Yes. These are the examples of electrical dissociation. Okay. 2H2O breakdown in the presence of electricity in H2 and oxygen. And next example, NaCl breakdown into two or more products in the presence of electricity. So this is known as electrical dissociation. सभी के समझ में आ रहा है?
सभी केस समझ में आ रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। यस यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। यदि तुम ध्यान लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आएगा। नथिंग इज मतलब इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम ध्यान लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है? यस। अब हम बात करते हैं थर्मल डिसोसिएशन। नेक्स्ट है थर्मल डिसोसिएशन। इसको साफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है हमारा थर्मल डिसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा थर्मल डिसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा थर्मल डिसोसिएशन। सेकंड नंबर थर्मल डिसोसिएशन। मैं वो की वो लाइन लिखेंगे। इन थर्मल डिसोसिएशन reactant convert into या break down into two or more product in the presence of thermal ठीक है, या heat। ठीक है, तो मैं इसमें वो लिख देता हूँ in thermal dissociation in thermal dissociation in thermal dissociation reactants break down into two or more product in the presence of बेटा नेटवर्क मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इसलिए आपको कुछ मतलब बोल रहा हूँ। यस, थर्मल मीन्स हीट। कपिल चौधरी, यस यू आर राइट, थर्मल मीन्स हीट। In thermal dissociation, reactants break down into two or more product in the presence of heat. In the presence of heat, ठीक है? हीट की प्रेजेंस में जो reactants होता है वो ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट बोलो या थर्मल बोलो, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखता हूँ मैं। एक एग्जांपल तो है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। हीट और हीट लेते हैं 473 केल्विन और ये टूटता है CaO प्लस में CO2। ठीक है? कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका दूसरा नाम है लाइमस्टोन। जो मार्बल होता है उसका फॉर्मूला है। ठीक है? कैल्शियम का कार्बोनेट, यहाँ पे मैंने इसको बंद किया है। ठीक है? सीन नहीं है, बंद कर रखा है इसको। उसके बाद इसका है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है? तो यहाँ पे ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है क्विकलाइन। क्या बोलते हैं इसको? क्विकलाइन। ठीक है? और इसका एक फॉर्मूला और है, इसका एक एग्जांपल और है
FeSO4, यहाँ पे FeSO4 के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये ब्रेक डाउन होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, यहाँ पे ये है आयरन ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिसोसिएशन, ध्यान देना। और यहाँ पे फेज लिख लेना, ये सॉलिड फेज में है, ये भी सॉलिड फेज में है, ये गैस फेज में है, और ये भी गैस फेज के अंदर है, और यहाँ पे ये भी गैस फेज के अंदर है, और यहाँ पे ये सॉलिड फेज के अंदर है, और यहाँ पे ये भी सॉलिड फेज के अंदर है। ठीक है, ध्यान देना। There are two examples of thermal dissociation. First, what is the meaning of thermal dissociation? So, first, it is the definition of thermal dissociation. In thermal dissociation, reactants break down into two or more products in the presence of heat. Okay? Yes. What is the examples of thermal dissociation? There are two examples of thermal dissociation. First, calcium carbonate break down into two or more products. First, calcium oxide, and second is carbon dioxide. Here, calcium carbonate, the name limestone, and it break down in the presence of 473 Kelvin. Calcium oxide and carbon dioxide. The phase of carbon dioxide is gas phase, and the phase of calcium oxide is solid phase. Yes, and the other name of calcium oxide is quicklime, बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, yes. Next, FeSO4, ferrous sulfate, कलर ब्लैक। यस बेटा, इस वाला जो सेकंड जो एग्जांपल है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, डोंट वेरी, ओके। इस वाले एग्जांपल्स को मैं ऊपर लिख देता हूं। ये आपने सबने उतार लिया होगा। यस, हम करें, सभी ने उतार लिया ऊपर वाला। यस, एग्जाम्पल्स था वो दूसरा वाला 2FeSO4 फेरस का सल्फेट, और यहाँ पे था हीट, यहाँ पे था क्या, हीट। तो हीट के प्रेजेंस में ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे इसको बोलते हैं आयरन या फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, इसकी फेज है सॉलिड फेज। तो यहाँ पे ये होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे है ये सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे इसकी जो फेज है वो सॉलिड फेज है, इसकी जो फेज है वो गैस है, और इसकी जो फेज है वो भी गैस है। ठीक है, सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है क्या?
टेंशन मत लिया करो, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल तुम्हारे और है इसमें, एनसीईआरटी में तुम्हारे एक एग्जांपल और दे रखा है, वो एग्जांपल भी लिख देते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे PbNO3 उसके बाद यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद ये ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एक तो PbO में और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स और प्लस में यहाँ पे बन रहा है ऑक्सीजन O2 और यहाँ पे इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? लेड नाइट्रेट। और यहाँ पे इसकी जो फेज है वो सोलिड फेज है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ध्यान रखना, लेड को Pb से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Pb से। अभी जो आगे वाली जो रिएक्शन आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें हम एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे और Pb को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Pb। तो लेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Pb से। तो लेड नाइट्रेट यहाँ पे सॉलिड फेज में है PbNO3, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इन ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। देखो 2 भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं? 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड, यहाँ पे लेड ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑक्सीजन। और ये ध्यान रखना इनकी फेज सॉलिड गैस गैस, ये सॉलिड फेज में है, ये गैस फेज में है और ये भी गैस फेज, ठीक है। उतारो जल्दी से, मैं इसमें इंक डालता हूँ। तो हमने कितनी डिसोसिएशन रिएक्शन की बात कर ली? 2 डिसोसिएशन रिएक्शन की बात कर ली। पहला हमने देखा इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, दूसरा हमने देखा थर्मल डिसोसिएशन। अब तीसरा एक डिसोसिएशन और है जिसको बोलते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में हो, ठीक है। जिसको बोलते हैं लाइट की प्रेजेंस में जो डिसोसिएशन होता है उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। लाइट को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं फोटोन, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन occurs in the presence of light, in the presence of light, ठीक है। सनलाइट हो सकती है, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा डिसोसिएशन होता है? फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, ध्यान रखना। तो तीसरा हम बात करते हैं, ये सभी ने उतार लिया होगा, आर यू श्योर? सभी थम कर रहे बेटा? बबलू यादव, यस, वेरी गुड बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से एजुकेशन ले रहे होंगे घर बैठ के, ठीक है। इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता, ठीक है। और बेटा मुझे उम्मीद है कि तुम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको रोज रिवाइज करोगे, ठीक है।
उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन के अंदर तीन थे, एक तो इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन हो गया, दूसरा थर्मल डिसोसिएशन हो गया, अब तीसरा जो हम बात करते हैं फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। व्हाट इज द मीन ऑफ फोटोलाइटिक डिसोसिएशन? सो लेट वी स्टार्ट थर्ड फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। थर्ड फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। Photolytic dissociation. Yes. What is the meaning of photolytic dissociation? फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइटिंग का मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो फोटोलाइटिक डिसोसिएशन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो दो या ज्यादा प्रोडक्ट पे टूटता है, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे इन फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, in photolytic dissociation reactants break down into two or more product in the presence of light, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इन फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। 2HBr और यहाँ पे प्रेजेंस लेते हैं लाइट की, तो यहाँ पे H2 प्लस Br2, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन का ब्रोमाइड है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पे ये है नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये है ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है 2AgBr, 2AgBr, यहाँ पे सनलाइट लिख लेते हैं, तो 2Ag प्लस Br2, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल तुम्हारे क्या है? AgCl है, 2AgCl प्लस सनलाइट, यहाँ पे 2Ag प्लस Cl, यहाँ पे ये है सिल्वर क्लोराइड। दिख रहा है सभी को नीचे से? दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा? सर कैन वी राइट? यस सर, नो सर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये ध्यान से दिख रहा होगा आपको, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस Cl2, ठीक है। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे तीनों की फॉर्म लिख
यहाँ पे ये गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में है, ठीक है, जी लगा लेना। और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में है, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में, ठीक है। इनको आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहो तो कुछ भी मतलब, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कौन सी स्पीशीज बनती है, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है बेटा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। रिमेनिंग ओनली 1 मिनट। अब ध्यान देना, ये जो मैंने जितने भी आपको सबसे पहले डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाया, उसके बाद डिसोसिएशन रिएक्शन के बाद उसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो उनको आपको लिख लिख के याद करना है, ठीक है, कि डिसोसिएशन रिएक्शन के कौन से एग्जांपल हैं, ठीक है। और डिसोसिएशन है वो 3 प्रकार का है, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन है, थर्मल डिसोसिएशन है और फोटोलाइटिक डिसोसिएशन है। तो थर्मल डिसोसिएशन के एग्जांपल, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन के एग्जांपल और इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन के एग्जांपल आपको याद करने हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद जो पहले का जो मैंने पढ़ा दिया है वो भी आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया आपको वो सब टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, ओके।